Hello students, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny solutions. Today we will be starting with lesson number 17, which is clothes are necessity. Right, now the lesson itself suggests us that clothes, they are our necessity. Can you live without clothes? And if I ask every single individual who is living on this earth, their answer will be no, because every one of us need clothes to wear, right? Because they protect us and we cannot stay without clothes. So in this lesson you will be coming to know more about clothes and our necessities. Okay, so let's start. Can you tell me, by observing the following pictures, which is the favorite cloth or which cloth you will like to have? Can you just encircle? If you ask me which cloth I want, I'll circle this one because pink is the favorite of all girls, right? Then I'll also go with this. And I am pretty sure every girl sitting here will go with all this thing. Okay. So, and boys also, I think so boys will go with this one, and this one, right? So we are very much choosy when it comes to clothes. We choose our clothes and then only we wear it. Yes, हम कितने नाटक करते हैं ना, no mama, I'm not liking this cloth, I don't want this is very much tight, I'll not wear it. So we become very much choosy when it comes to clothes, right? Now I'm having some more pictures for you because I know you love watching all the pictures of the clothes, right? So just see. Now if I'm asked to choose from this, I'll choose this one. I'll also choose this one. See, I'll choose every cloth because I'll wear it for 2-3 times I'll wear it and then I'll just keep it aside, right? What we do like that only, na? And if I ask boys, the first thing they will choose is this one. Then they will go with this Spider-Man, right boys? And now Spider-Man, and then they can go with this formal also, right? So we don't say clothes whether it can be of any type. We just think we will wear it one time, है ना? हम ऐसे ही सोचते हैं कि एक बार पहन लेंगे, and आप मम्मा आपके कपड़े छुपा भी देती है ना, because you just wear it, आप उसको गंदा कर देते हो, है ना? So clothes are very much essential for us, and ये lesson में आप क्या देखोगे कि clothes हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? What are the necessity of this clothes? Okay. So in the box you have to write the total number of clothes you selected. आपने जो भी मैंने दोनों स्लाइड पे जो भी आपको क्लोथ्स दिखाए उसमें से आपने कितने नंबर ऑफ क्लोथ्स को सिलेक्ट किया? If I am asked to select, I'll select approximately 10 clothes for me. Because अगर मेरे पास पूरा कबर्ड भर के भी क्लोथ्स होगा ना, then also I'll think I want more clothes. Right? This happens with every girl, right girls? So, does the number of clothes you have chosen tally with that of your friend? Now, whatever number of clothes that you have selected, you have to just tally means what? आपको अपने friend का देखना है. अगर आपने 6 clothes को select किया है, तो आपको ये देखना है whether your friend has also chosen 6. Okay? And you have to tally that. Okay? Now I have some questions for you. Now in this lesson you will see कि I'll ask you more and more questions, and we will have more of the activities and try this because I think so no one can explain you more about clothes better than you. हमें ही पता होता है ना which type of clothes we like and which types of clothes we don't like. So हमसे अच्छे से कोई नहीं बता सकता about clothes, right? So on which days will you wear the clothes you have chosen? Now, from the last pictures you have chosen the clothes, right? So on which days you will wear those clothes? When it is some festival, right? When it will be birthday party of your friend, or when it is your own birthday, or any of the occasion, right? हम तभी पहनेंगे, and ऐसे भी तो हमें पसंद है. If we are not going anywhere, then too we just like to wear new clothes, ना? And we just think कोई बाबा clothes दे दो, है ना? So how many times in a day
Will you change your clothes? कितनी बार आप अपने clothes को change करोगे अगर आपने 10 clothes select किए हैं, okay? So if I'm having so much of clothes, I'll change my clothes 3 times a day because I love giving different appearances, okay? So I'll change my clothes 3 times. Do you think you should have other clothes beside the ones you have chosen? If so, write how many in the box. अभी आपने suppose you have chosen 10 clothes. आपने जो पीछे slides थे उसमें से आपने 10 clothes को choose किया है, तो आपको क्या लगता है वो 10 clothes के अलावा भी आपके पास clothes होने चाहिए क्या? According to me, yes. Because as I said कि मुझे बहुत सारे clothes चाहिए. I love wearing different clothes, right? So yes. कितने भी दे दो, I need 100 also, okay? So if I am asked how many more you want, I'll write 50 to 100. Yes, you should not write this much, but for me clothes are like I'll wear it once and then I'll keep it aside, okay? So the fourth question is, apart from the clothes, which other things will you like to wear? Clothes के अलावा आपको क्या पहनना पसंद है? Will you wear leaves? No, right? So apart from clothes, what we will wear? We can wear jewelry, right? Jewelry पहन सकते हैं हम, right? So will you lend your clothes to your friend? Yes, आप अपने फ्रेंड के साथ अपने क्लोथ्स को शेयर करोगे. बिकॉज सपोज अगर आपके पास 10 क्लोथ्स है एंड आपके फ्रेंड के पास 10 क्लोथ्स है एंड इफ यू आर शेयरिंग एंड वेयरिंग द क्लोथ, इट मीन्स बोथ ऑफ यू हैव 20 क्लोथ्स ऑल टुगेदर. सो 20 days आप अलग अलग कपड़े पहन सकते हो. जस्ट इमेजिन. सो येस, वी शुड लैंड आवर क्लोथ्स. We can. If there is some occasion and your friend is not having appropriate cloth to wear at that occasion or festival, we can share our clothes with them, right? Because sharing is caring, right? So we can lend. So I'll write here, yes, I will. Okay. So which clothes that you see in the advertisement would you like to wear? आपको कौन से यहाँ से आपको कौन सा cloth पहनना है? My favorite color is black, but there is no black color here. I'll wear this red and black. And you all choose yours. Which cloth will you wear? Just choose and keep, okay? You have to choose which cloth you will wear. Okay? Now you have to try this. As I said कि आपको ये lesson में try this and activities ही ज़्यादा होंगे. So another try this experiment. Okay? Visit people in your surrounding who often take shelter at places like railway or bus station, brick lanes, open grounds, etc. अब आपको अपने ऐसे लोगों के घर जाना है जो अलग अलग प्लेसेस पे जाते हैं और रहते हैं. शेल्टर लेना मतलब क्या? वहाँ पे जाके रहना. जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, ओपन ग्राउंड, ऐसे जगह पर रहते हैं. ओके. उसके बाद आपको उनसे कुछ डिस्कस करना है. यू हैव टू डिस्कस दिस फॉलोइंग क्वेश्चंस विद देम एंड आपको अपने नोट्स बनाने हैं. ओके. फर्स्ट थिंग आपको क्वेश्चन क्या पूछना है? फर्स्ट थिंग यू शुड आस्क इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स दे हैव, हाउ मेनी क्लोथ्स आर दे हैविंग. ओके. पहले आप उनको ये पूछोगे. फिर आपको पूछना है व्हाट डू दे वेयर इन समर सीजन. समर मतलब क्या? गर्मी के सीजन में वो कौन से कपड़े पहनते हैं. थर्ड क्वेश्चन यू विल आस्क देम इज व्हाट डू दे वेयर इन विंटर सीजन. विंटर सीजन में कौन से क्लॉथ्स पहन रहे हैं. एंड द फोर्थ थिंग यू नीड टू आस्क इज what clothes do they use during the monsoon season. Monsoon matlab, do you know what is monsoon season? Monsoon means rainy season. Okay, तो you have to ask them. See, यहाँ पे आपको एक तो पूछना है कि उनके पास कितने क्लोथ्स है. फिर समर सीजन, अभी तीन सीजन सबसे ज्यादा होता है, राइट? तो समर सीजन में कौन से क्लोथ्स पहन रहे हैं वो, विंटर सीजन में कौन से क्लोथ्स पहन रहे हैं एंड रेनी सीजन में कौन से क्लोथ्स पहन रहे हैं. ओके. सो यू हैव टू आस्क देम एंड यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ इट. अंडरस्टूड?
we like to wear many different types of clothes and we wish to own them as well, right? हमें अलग अलग कपड़े पहनना पसंद है ना, और हमें ऐसे लगता है कि अगर हमने एक बार कोई कपड़ा पहन लिया है तो वी शुड नॉट रिपीट, राइट? सो वी आर हैविंग अप्रोक्सीमेटली, आई थिंक सो माइट बी हैविंग करंटली 25 to 30 क्लोथ्स नाउ. आपके पास भी इतने सारे होंगे ना, एंड मम्मा ने आधे रख दिए होंगे कबर्ड में, बिकॉज यू विल वेयर देम एंड यू विल मेक देम डर्टी, राइट? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू आस्क देम इज, आप जो लोगों के पास विजिट करोगे, जो रेलवे स्टेशन बस स्टेशन पे रहते हैं जाके, ओके, फिफ्थ क्वेश्चन यू नीड टू आस्क देम इज व्हाट डू दे वेयर टू फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स. वो लोग फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स में कौन से कपड़े पहनते हैं, एंड हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे डू दे चेंज देयर क्लोथ्स. ओके, आपको ये 6 क्वेश्चंस उनको पूछना है. ओके, फर्स्ट वाज टोटल क्लोथ्स, समर में क्या पहनते हैं, विंटर में क्या पहनते हैं, मानसून में क्या पहनते हैं, फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स में क्या पहनते हैं, एंड कितने टाइम वो अपने कपड़े चेंज करते हैं दिन में. ओके, नाउ if I tell you, if you go to any of such people, you will get the answer as I am having 2 clothes only. So what do they wear in summer? They wear the same 2 clothes. In winter, same 2 clothes. During monsoon, same 2 clothes. During festival, same 2 clothes. And how many times they change their clothes? 1 time. Okay. Now what did you realize from the activity above? अब हमारे पास, as I told you, कि मुझे बहुत सारे कपड़े चाहिए. I love changing my clothes every day, right? So अब हमारे पास 25 से 30 clothes होके भी we want more. We are becoming greedy, right? हमें लालच आ रहा है क्लोथ्स का. But what about the people who are taking shelters in the railway station, bus stand, then open grounds, playgrounds? What about them? They are having just 2 clothes and they are satisfied with that. उनको कोई problem नहीं है, right? They don't want many clothes. They just want a simple life where they are getting enough of the food, they are getting enough of the sleep, and they are being comfortable with what they are. They are not becoming greedy as we are, because अगर जब हमारे पास 20 clothes आते हैं, we think we should have more. जब हमारे पास 50 हो जाएंगे, that time also we will say that we want more. Okay, so this should not happen. So after this activity, we may find that the number of the clothes we wish to have is rather large, है ना? हमें जो विश है दैट वी शुड हैव दिस मच ऑफ क्लोथ्स, वो बहुत बड़ी लिस्ट है, राइट? सो वांटिंग क्लोथ्स एंड रियली नीडिंग देम, दे आर द 2 डिफरेंट थिंग. आपको क्लोथ चाहिए एक अलग बात है, एंड आपको उसकी ज़रूरत है, ज़रूरत एंड एक वांटिंग, दिस आर द 2 डिफरेंट थिंग. Okay, so wanting things when we do not need them is simply desire and it is not a necessity. Desire मतलब we are just desiring कि हमें और ज़्यादा clothes चाहिए, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमारे पास desire है कि we need more and more clothes, and but they are not necessary for us, right? So in the from the last questions we came to know that there are people who are not having enough clothes, and then too they don't desire to have much clothes, right? But now we are having so much of clothes and our desire is becoming large, greater day by day, right? We see many advertisements on TV, hoardings, etc., and we are attracted towards the clothes which are shown in them. If I'm showing here this clothes, I am pretty sure that your eyes are on those clothes only, and you might be imagining yourself कि आपने वो clothes पहने हुए हैं, right? तो हम जब टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जो बाहर बोर्ड्स लगे होते हैं हाईवे पे, होर्डिंग्स बोलते हैं उसको, राइट? तो होर्डिंग्स पे जब हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, हमें ऐसे लगता है दैट वी ऑल्सो वॉन्ट दैट क्लोथ, आई बाय दैट एंड आई वेयर दैट, राइट? हमें ऐसा होता है. तो वॉट इज दिस डूइंग? द एडवर्टाइजमेंट जो हम देख रहे हैं टीवी में, दैट इज कॉजिंग अट्रैक्शन,
है ना, हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड देन दैट अट्रैक्शन गेट कन्वर्टेड इनटू ग्रीड. ग्रीड मतलब क्या, लालच. हमारा जो अट्रैक्शन है क्लोथ्स की तरफ वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ग्रीड. ग्रीड मतलब क्या, आई राइट इट फॉर यू. ग्रीड मतलब इज लालच. ओके, see, use your brain power and you have to answer. Okay, Rohan and Sania have many clothes. They are having many clothes to wear, but they do not wear many of them. Now they are wondering what they should do with all these clothes and help them to solve their problem. Now suppose Rohan is having 40 clothes and Sania is having 60 clothes. Okay, suppose. Okay, now Rohan wears only 20 of them and Sania wears only 30 of them. So how much clothes they are left with? Rohan is left with 20 and Sania is left with 30. So all together they are having 50 clothes, right? So what you can suggest them to do, what they should do? Now there are various people, okay, who don't have clothes to wear. So you can take them to the NGO. NGO is a non-government organization which works for the betterment of the people. वो क्या करते हैं पता है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको खाना भी नहीं मिलता, जो स्कूल नहीं जा पाते, तो ये जो NGO है वो उनको खाना देते हैं, उनको पढ़ाते हैं एंड दे हेल्प देम. तो आप ऐसे NGO में जा सकते हो. NGO में आप जो कपड़े नहीं पहनते हो आप उनको दे सकते हो. अगर आपने उसको 2-3 बार पहना है एंड आप उसको ऐसे ही फेंक रहे हो, तो यू शुड रेदर गो टू द NGO एंड आपको NGO में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए ताकि योर क्लोथ्स विल रीच टू द नीडी पीपल. ओके, आई होप दैट एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस NGO नाउ एंड आप अब यही करोगे, राइट? इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग योर क्लोथ्स हियर एंड देयर, जस्ट ट्राई दैट यू डोनेट योर क्लोथ्स और यू डिस्ट्रीब्यूट योर क्लोथ्स टू द नीडी पीपल. ठीक है? Now another try this experiment. What you have to do, आपके जो आसपास टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब ऐसी इंडस्ट्री जो क्लोथ्स बनाते हैं. ओके, तो अगर आपके पास कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री है आपके आसपास, तो आपको वहाँ पे जाना है अपने मम्मा के साथ, बिकॉज वी कैन नॉट गो. इफ वी वुड हैव मेट तो हम जाते, बट आई डोंट थिंक सो. सो यू कैन गो विथ योर मामा एंड यू कैन इंटरव्यू the skilled workers there who are making clothes. You have to interview them. आपने ये देखा है न्यूज़ चैनल देखा होगा, तो उस पर कैसे रिपोर्टिंग होती है. एक लेडी होती है, she just holds the mic, सामने कैमरामैन होता है, this is a mic, okay, सामने कैमरामैन होता है and the lady just picks up. ठीक है, यहाँ पे आपने इंटरव्यू राउंड देखा होगा ना बहुत सारा. तो आपको इंटरव्यू में क्या करते हैं, you just have to ask them questions, okay, and in return what you will get all the answers to all your questions. This is what you have to do. You have to visit the nearest textile industry and आपको पूछना है उनको questions. Okay, see, this is an handloom. Can you see the picture here? This is the handloom the man is using and the woman is using a charaka which is called as spinning wheel. You might have seen महात्मा गांधी को देखा है इस चरखा के साथ, चरखा. Yes, this is called as चरखा. महात्मा गांधी जी इसको यूज करते थे. ओके, इसको हम और क्या बोलते हैं, स्पिनिंग व्हील. ठीक है. नाउ अब जब आप इंटरव्यू लोगे तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करनी है, राइट? आपको उनको कुछ क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, है ना? तो पहला क्वेश्चन आप क्या पूछोगे उनसे, व्हाट इंडस्ट्री इज इट? कौन सी इंडस्ट्री है ये? तो दे विल टेल यू इट इज अ हैंडलूम इंडस्ट्री, इट इज अ स्पिनिंग व्हील इंडस्ट्री, इट कैन बी एनी इंडस्ट्री विच यू आर विजिटिंग, इट विल बी अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री मोस्टली. वो आपको आंसर क्या देंगे, इट इज अ टेक्सटाइल इंडस्ट्री. अब फिर सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछना है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री? जो भी इंडस्ट्री में आप विजिट कर रहे हो आप उनको पूछोगे पहले तो कौन सी इंडस्ट्री है, अब ये इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट कौन से बन रहे हैं. प्रोडक्ट क्या होते हैं, जैसे अभी आप दूध वाले के पास जाओगे तो ही विल गिव यू मिल्क, कर्ड एंड ऑल. अगर आप किसी कपड़े की इंडस्ट्री में जा रहे हो तो उनके प्रोडक्ट क्या होंगे, ऑब्वियस सी बात है, दे विल हैव क्लोथ्स, राइट?
Then the third question you have to ask, what raw material is used to produce this fabric? अब आप जो अलग अलग कपड़े पहनते हो ना, कॉटन, सिल्क, वूल, वो क्या होता है? फैब्रिक. तो आपको पूछना है कि ये फैब्रिक बनाने में रॉ मटेरियल क्या यूज किया गया है. रॉ मटेरियल मतलब क्या? कच्चा. उसको फिर दिस रॉ मटेरियल विल देन बी कन्वर्टेड इनटू क्लॉथ, तो उसको बोलेंगे रॉ मटेरियल. सपोज मेरे पास एक टॉप है, ओके. अब ये टॉप में रॉ मटेरियल क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, थ्रेड्स होंगे, राइट, नीडल्स होंगे, एंड अ क्लॉथ विल बी देयर. सो दिस आर द रॉ मटेरियल, एंड ये रॉ मटेरियल यूज करके आई हैव मेड दिस प्रोडक्ट विच इज द टॉप, राइट. Then the fourth question you have to ask is, where does the raw material come from? अब पहले आपने पूछा कि आपने ये raw material कहाँ पे कैसे यूज किया है फैब्रिक में. फिर आप पूछोगे वो रॉ मटेरियल आपको मिला कहाँ से है, आया कहाँ से है, ओके. एंड इन द लास्ट क्वेश्चन यू हैव टू सॉरी नॉट लास्ट, then in the fifth question you have to ask, in what form is the raw material obtained? आपको कैसे फॉर्म में रॉ मटेरियल मिल रहा है? You have to ask this, okay, and you have to collect information. Next question which you have to ask is, whether is the finished product sent for sale? आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो एट लास्ट उसको आप सेल के लिए भेज रहे हो क्या? एंड कौन से सीजन में आप ये टेक्सटाइल्स को मेनली यूज किया जाता है, ओके. फिर आपको 8th क्वेश्चन उनको पूछना है, व्हाट काइंड ऑफ वर्कर्स आर नीडेड फॉर दिस इंडस्ट्री. अब आप क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे कैसे टाइप के वर्कर्स उनको चाहिए होते हैं, उनको क्या क्या आना चाहिए, ओके. देन आपको पूछना है, वेयर डू दिस वर्कर्स कम फ्रॉम. ये वर्कर्स आते कहाँ से हैं? दे विल टेल यू दैट दिस वर्कर दे डू सम ऑफ दिस कोर्सेज. ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद, फैशन डिजाइनिंग करने के बाद, ये करने के बाद द वर्कर्स कम हियर एंड देन दे डू देयर वर्क, ओके. देन इन व्हाट वे हैव सेंटर्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री चेंज्ड सिंस द ओल्डन डेज. अब ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं इन द ओल्डन डेज, यू हैव टू आस्क देम. एंड लास्टली यू हैव टू आस्क कि ये इंडस्ट्री जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर सकती है क्या, उनको लॉसेस हो रहे हैं क्या, लोग आजकल कपड़े खरीद रहे हैं क्या, कैसे टाइप के कपड़े लोगों को खरीदना पसंद है. यू कैन ऐड योर क्वेश्चंस एंड यू कैन इंटरव्यू देम. आपको करना क्या है, द मोटो ऑफ दिस इज, आपको ये इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट करनी है उनसे, ओके. सो यू कैन आस्क देम एनी ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू देयर इंडस्ट्री, राइट. ओके, नाउ अब इंडस्ट्री से आने के बाद, नाउ वी हैव ऑब्टेन्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेंटर्स बाय आस्किंग द क्वेश्चंस व्हिच वर गिवन अबाउट, राइट. एक बार हमने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली. नाउ लेट अस सी एग्जांपल्स ऑफ द टेक्सटाइल्स दैट आर द स्पेशलिटीज ऑफ महाराष्ट्र, लाइक द पैठानी और पैठन एंड योला, हिमारू शॉल्स फ्रॉम औरंगाबाद, bed sheets and bedspreads from Solapur, handloom and powerloom cloth from इच्छल, करंजी एक्सेट्रा. तो अब हर एक स्टेट की अपनी खुद की स्पेशलिटी होती है. जैसे महाराष्ट्र की अगर आप बात करोगे तो महाराष्ट्र में पैठानी और पैठन जो कपड़े होते हैं दोज आर मोस्टली यूज्ड, राइट. औरंगाबाद की बात करोगे तो औरंगाबाद में हिमराऊ शॉल आर मोस्ट यूज्ड. बेडशीट्स एंड बेडस्प्रेड्स चाहिए आपको, देन यू कैन गेट इट द बेस्ट फ्रॉम सोलापुर. हैंडलूम एंड पावरलूम क्लॉथ्स चाहिए तो you can go and visit Itchil, Karanji. So these are the places or these are the textile industries which are having specialities in different states. अलग अलग states की अपनी खुद की specialities होती है, right? So you will understand this better from the map on the next page. अब ये आपको अच्छे से कब समझेगा, when you will just go through the map which is given here, okay? So to the index of the map, add the textile industries that you know of but are not shown here. आपको ये जो इंडेक्स में दिख रहा है ब्लैंक स्पेसेस, आपको यहाँ पे 2 टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऐड करनी है जो इसमें है नहीं पर आपको पता है, ओके. एंड फिर आपको मार्क करना है उसको अप्रोप्रिएट प्लेस पे.
अब दिस इंडेक्स, आपको जो मैप पे इंडेक्स दिख रहा है यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, दिस इंडेक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैप, बिकॉज अगर इंडेक्स नहीं होता तो आप मैप को रीड ही नहीं कर पाते. पता है क्यों? बिकॉज सी, आपको ये सिंबल दिख रहा है फर्स्ट वाला, ये जो सिंबल है इसका मतलब क्या है? ये क्लॉथ जो है कहाँ से आया है? इच्छल करंजी से. कैन यू फाइंड आउट द सिंबल इन द मैप? सी, द सिंबल इज हियर. सो वेयर इज इच्छल करंजी? इट इज इन कोल्हापुर. तो कोल्हापुर से हमें जो कपड़े मिलते हैं that is marked here. Now the bed sheets from Solapur. So this is the symbol for the bed sheets from Solapur, and here is the Solapur and here is the symbol. So now because of the index you can easily read the map, है ना. हिमराव शॉल कहाँ पे मिलता है? तो you have to just see for this. So I can see here. So where it is? It is in Aurangabad. So where do you get this Himrao shawl? We get that in Aurangabad. Okay. Then you have to find out this symbol in the map. Where it is? See here. Right. So what it says you? Yellow sari. So you get it in Nashik. Okay. And the last symbol that is given is this. Paithani of Paithan. Okay. So that symbol is also here in Aurangabad, but you can also get it in Maharashtra, which is somewhere here in Mumbai city. Okay. And you have to add 2 more. Okay, I want you all to find out, or I want you all to just check which textile industry do you know, and you have to add it and mark the places with a symbol like this. Yes, you can do it, right? Yes. Now do you know that Lucknow chikan, Kashmir silk. Kashmir is very much famous for its silk. अब कश्मीर जाओगे ना तो आपको सिल्क क्लॉथ्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे. ओके. देन बनारसी साड़ी, फेवरेट ऑफ ऑल वुमेन्स, राइट. मम्मा को पूछो उनकी कौन सी साड़ी फेवरेट है, शी विल टेल दैट बनारसी, आई वांट टू वेयर बनारसी. देन कडियाल, पीताम्बरी, पोचामपली, नारायणपेट, कांजीवरम साड़ी. महाराष्ट्र में कौन सी साड़ी चलती है? इट्स कांजीवरम. Patola and Mysore sarees, they are also famous. Mysore silk. Okay, so these are some of the types of sari. Well, what you can do, you can do some small activities. से क्या होगा? आप पेरेंट्स से बात कर पाओगे अच्छे से. Just go to your mama and ask her, मम्मा अलग अलग टाइप की साड़ीज कैसे होती है? I know 1 2, जैसे कि कश्मीर सिल्क, बनारसी साड़ी. Then she will just give you a long history and you will come to know more about sarees. Okay, and you will enjoy whatever she will say you. Okay, so just do this. Okay, so these are the various different types of sarees, and these sarees, they come from different parts of India, which showcase the diversity of our country. अब यहाँ पे जैसे मैंने बोला बनारसी साड़ी कहाँ पे मिलती है? बनारस में. ओके. कश्मीर सिल्क कहाँ मिलेगा? कश्मीर में. आई टोल्ड यू कांजीवरम कहाँ मिलेगी? महाराष्ट्र में. ओके. सो ये आप देख रहे हो अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्पेशलिटी है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी. मतलब क्या? वेरिएशन. हमारे कंट्री के अंदर कितना वेरिएशन है ना. सो दिस इज अ काइंड ऑफ वेरिएशन जो हमें कपड़ों में भी देखने मिलता है, एंड दैट इज व्हाई इंडिया हैज अ डाइवर्सिटी ऑफ इट्स ओन, राइट. नाउ यू हैव टू ट्राई दिस. Try to find out more about different varieties of cloth. You have to visit a cloth market with your parents. आपको अपने मम्मा पापा के साथ एक क्लॉथ मार्केट जाना है, आपको अलग अलग वैरायटीज़ के क्लॉथ पता करने हैं, एंड यू हैव टू डिस्कस द पॉइंट्स विच आर गिवन बिलो विद द पीपल देयर एंड मेक नोट्स. तो जब भी आप मार्केट विजिट करोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस पूछना है विच आई एम शोइंग यू. ओके, वी विल जस्ट सी दिस मैप ऑल्सो लेटर. Now you have to look at the variety of the clothes and make a list of their name. अब सपोज आपको वो अंकल ने क्या बोला, so these are the various varieties. आपने सारे varieties लिख लिए उनके नाम के साथ. ओके. देन आपको देखना है कि कौन सा क्लॉथ सिर्फ चिल्ड्रन के लिए बना हुआ है, कौन सा क्लॉथ अडल्ट्स के लिए है, एंड कौन सा क्लॉथ एज्ड पीपल मतलब ग्रैंडमा ग्रैंडपा के लिए है. ओके. फिर आप ये सेकेंड चीज़ आपको देखनी है. उसके बाद आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ साड़ीज़ देखनी है, जैसे कि अभी मैंने बोला आपको बनारसी साड़ी, देन
Kanjivaram sari, right? So these are the various types of saris. So you have to go to the to the market and आपको उनसे पूछना है और कितने अलग अलग टाइप्स के साड़ीज है. ओके, देन यू हैव टू नोट डाउन द नेम्स ऑफ द प्लेस विच आर फेमस फॉर दिस साड़ीज. जब आप मार्केट जाओगे एंड आप किसी एक बड़े शॉपकीपर के पास जाओगे हु विल बी दी होलसेलर, जो बहुत सारे साड़ीज रखते हैं. ओके, आप उनको पूछोगे कितने टाइप्स के साड़ीज है, ठीक है. फिर आप पूछोगे कि आते कौन से प्लेस से हैं. यू हैव टू आस्क देम द प्लेसेस विच आर फेमस फॉर साड़ीज, सो दैट अगर आप फ्यूचर में कभी जाओगे बाहर घूमने तो आपको पता है कि यहाँ पे ये फेमस साड़ी मिलती है, यू कैन गेट इट फॉर योर ममा, राइट. सो जस्ट आस्क देम. ओके, देन यू हैव टू स्पॉट द नेम्स ऑफ द प्लेस और द रीजन in the names of the sarees, and then you have to mark those places and regions on the map which is given below. अब ये जो आपको मैप दिख रहा है, सपोज जो अंकल थे उन्होंने बोला महाराष्ट्र में कांजीवरम मिलती है, तो यू हैव टू राइट, ठीक है. देन ही सेड कि जब आप कश्मीर जाओगे तो आपको कश्मीर में भी अच्छी सिल्की साड़ी मिल जाएगी. बनारस जाओगे, बनारस कहाँ पे, इट इज़ इन उत्तर प्रदेश, राइट. बनारस जाओगे तो आपको यहाँ पे बनारसी साड़ी मिल जाएगी. सो देर आर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साड़ीज दैट पीपल वेयर. तो आपको उनसे पूछना है, सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है एंड आपको यहाँ पे मैप में डालना है. सपोज राजस्थान में जाओगे तो आप देखोगे कि वो वहाँ पे अलग ही तरह के कपड़े पहने जाते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ स्पेशलिटी होगी साड़ीज में, राइट. सो यू हैव टू राइट एवरीथिंग, यू हैव टू राइट दैट इन द मैप इनसाइड. ओके, thus we note that a variety of fabric and costumes have come into use due to the diverse climatic conditions in the different parts of the country. अब if we talk about country में हर जगह पर जो climate है that is totally different, है ना. हमारा जो climate होता है वो हमें पूरा different ही है, राइट. कहीं पे गर्मी होती है, कहीं पे ठंडी लग रही होती है, कहीं पे स्नोफॉल हो रहा होता है. अगर इंडिया की बात करें तो इफ़ आई एम इन मुंबई एंड इफ आई एम टॉकिंग टू समवन इन दिल्ली, मुंबई पीपल विल से इट इज़ रेनिंग हेविली हियर, एंड दिल्ली वाले क्या बोलेंगे, बारिश नहीं है, ऊपर से गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा. तो इसको ही हम क्या बोलते हैं कि बहुत डाइवर्सिटी है हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन में. एंड जब पता है जब गर्मी होती है तो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, ठंडी आ जाती है तो हम वुलन क्लॉथ्स पहनने लग जाते हैं. तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम अपने कपड़े चेंज करते हैं ना. रेनी सीजन में हम अपने कपड़े चेंज कर देते हैं. सो इंडिया के अंदर एंड अलग अलग कंट्रीज में बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक सिचुएशन और द क्लाइमेटिक कंडीशन दैट दे आर हैविंग, उसके बेसिस पे भी कॉस्ट्यूम्स एंड फैब्रिक्स का यूज़ किया जाता है. ओके, सो विद बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नाउ दे हैव बिकम अवेलेबल इन ऑल द प्लेसेस, बिकॉज अब हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई है, इसलिए हमें हर जगह पर हर टाइप के क्लोथ्स मिल सकते हैं, राइट. सो द डाइवर्सिटी इन क्लोथ्स इज़ अ पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री. नाउ लेट मी क्लियर द वर्ड डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी मतलब वेरिएशन, मतलब अलग अलग तरीके के क्लोथ जो है वो कंट्री की डाइवर्सिटी है. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी विच यू हैव टू डू और ट्राई दिस, यू हैव टू टॉक टू योर एल्डरली पीपल इन योर फैमिली. या आपके आसपास जो रहते हैं आपको उनसे बात करनी है ना, आपको ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. ओके, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू आस्क इज व्हाट क्लोथ्स डिड दे वेयर ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड. बचपन में वो कैसे कपड़े पहनते थे. फिर आपको उन सारे कपड़ों के नाम लिखने हैं. ओके, नाम लिखने के बाद यू हैव टू टेक द लिस्ट टू अ क्लॉथ और अ गारमेंट शॉप एंड सी विच ऑफ द क्लॉथ्स इन योर लिस्ट आर अवेलेबल देयर. ठीक है, आपको आपने नाम लिख लिया, उसके बाद आप लिस्ट बना लिया. वो लिस्ट लेके आपको कहाँ पे जाना है, कपड़े की शॉप पे जाना है एंड फिर उनको पूछना है कि कौन से क्लॉथ्स अभी आपके पास अवेलेबल है. ओके, देन आपको ढूंढना है विच ऑफ द क्लॉथ्स आर नॉट वोन एनी मोर बिकॉज दे आर एल्डरली. अगर आप अपनी ग्रैंड माँ को पूछोगे तो शी विल गिव यू द लिस्ट, एंड जब आप ये शॉपकीपर के पास जाओगे ना तो ही विल टेल यू अब ऐसे कपड़े कोई पहनता ही नहीं है, राइट. तो ऐसे भी कुछ आपको लिस्ट में नाम मिलेंगे. देन यू हैव टू फाइंड आउट द प्लेसेस वेयर दिस क्लोथ्स यूज टू कम फ्रॉम. अब जो कपड़े मिल रहे नहीं है आपको वो जगह का पता करना है कि वो कौन से प्लेस से आते थे. ओके, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाई दिस क्लॉथ्स वेंट आउट ऑफ यूज. आपको पता करना है कि अब ये कपड़े क्यों नहीं पहने जाते, बिकॉज इफ इट इज़ नॉट वोन बाय एनीवन देयर माइट बी सम ऑफ द रीजन. तो आपको वो फाइंड आउट करना है. ओके, एंड यू विल कम टू नो दैट हमारा जो कपड़ा पहनने का तरीका है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट एंड अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड.
अगर ऑफ शोल्डर टॉप चल रहा है तो एवरीवन विल वेयर द ऑफ शोल्डर टॉप, राइट? सो ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी कपड़े चेंज होते हैं, राइट? नाउ डू यू नो दैट ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ द मैन हिज बॉडी वेंट थ्रू मेनी चेंजेस, है ना? इवोल्यूशन मतलब क्या, आपको पहले पता है हमारा बॉडी कैसा था? पहले हमारा बॉडी वॉज लाइक मंकी, तो मंकी से अब हम ह्यूमन बीइंग्स बन चुके हैं विद 2 eyes, 2 ears, 1 nose, 1 mouth, राइट? तो जैसे जैसे मैन में इवोल्यूशन हुआ है हमारे बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। एंड एक चेंज जो हमारे बॉडी में आया है वो हमारे बॉडी पे जो हेयर है वो रिड्यूस हो गए हैं। इसलिए हेयर्स का काम क्या होता है? आपके बॉडी के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट है ना, तो हेयर्स जो है वो आपके स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? दे प्रोटेक्ट द स्किन। तो बॉडी पे हेयर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अब क्या हो रहा है, हमारे बॉडी पे जो हेयर है दैट इज़ रिड्यूसिंग, एंड इसलिए हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए वेदर कंडीशन से हमें क्लोथ्स पहनना ज़रूरी है। सो बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन thus arose the need for the clothes, okay? because body के hair कम हो रहे हैं and we need protection from our external environment, and that is the reason we need clothes, right? We can see a variety in the clothes which are used through the ages. मतलब बहुत पहले से जो clothes use करते आ रहे हैं उसमें हमने बहुत सारी varieties देखी है, okay? So in the prehistoric times मैन डिड नॉट वेयर क्लोथ्स। पहले के लोग क्लोथ्स नहीं पहनते थे, फिर धीरे धीरे वो क्या पहनने लगे? दे स्टार्टेड विद द बार्क एंड द लीव्स ऑफ द ट्री, ठीक है? बार्क एंड लीव्स पहनने लगे। आफ्टर दैट ही बिगेन टू हंट, एनिमल्स को मारने लगे, एंड फिर उसके एनिमल के स्किन से दे स्टार्टेड मेकिंग द क्लोथ्स, ओके? एंड आफ्टर ही लर्न टू मेक यार्न फ्रॉम मटेरियल्स लाइक कॉटन वूल से वो क्या बनाने लगे? दे स्टार्टेड मेकिंग यार्न एंड दे स्टार्टेड वेयरिंग दैट। तो ये यार्न से ही बिगेन टू यूज कॉटन क्लोथ्स इन वैरायटी ऑफ फॉर्म। क्या हुआ? पहले उन्होंने बार्क एंड लीव्स ऑफ द ट्रीज पहने, ओके? जैसे उनको पता चला कि एनिमल के स्किन यूज कर सकते हैं, देन उन्होंने एनिमल के स्किन लेना चालू किए। थर्डली जब उनको कॉटन वूल के बारे में पता चला तो उन्होंने कॉटन यूज करना चालू कर दिया, ओके? अब आपको ये प्रोग्रेशन जो है वो दिखेगा पिक्चर में इन द नेक्स्ट स्लाइड, ओके? लेट्स सी दिस इज द क्लोथिंग विच इज चेंज्ड विद द टाइम। अर्लियर बिकॉज पीपल यूज्ड टू हैव हेयर्स, सी देयर आर सो मेनी हेयर्स। अर्लियर टाइम पीपल यूज्ड टू हैव सो मेनी हेयर्स, इसलिए उनको अपनी बॉडी प्रोटेक्ट नहीं करनी पड़ती थी। बट लेटर व्हाट हैपेंड? हेयर्स जो है वो रिड्यूस होने लगा एंड पीपल केम टू नो अबाउट क्लोथ्स, तो उन्होंने हंटिंग चालू कर दी एंड दे स्टार्टेड यूजिंग लाइक दिस। फिर उनको क्लोथ्स के कॉटन के बारे में पता चला, सो दे स्टार्टेड डेवलपिंग द चेंजेस। एंड सी 5 पिक्चर दिख रही है आपको, कितना ज़्यादा चेंज हुआ है ना क्लोथ्स में। सो दिस इज हाउ आवर क्लोथिंग हैज चेंज्ड विद टाइम, ओके? एंड वी हैव स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी, वी हैव स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग आवर स्किन, राइट? So what we have learned in this lesson, clothes are necessity. We have gained more and more information about clothes, right? So what we have learned, wanting thing that you do not need is a desire. Desire मतलब चाहत. It is not a necessity. You are unnecessarily just wanting those things. It is not required by you, right? And we must use things only as we need them. जब आपको उसकी ज़रूरत होगी तभी आपको चीज़ें खरीदनी चाहिए और आपको यूज़ करनी चाहिए, okay? Then we studied that several regions in our country, they have a tradition of producing fabric characteristics of the place. हमने देखा कि अलग अलग रीजन में अलग अलग क्लॉथ्स बनते हैं and according to the tradition they have different types of clothes, है ना? And at last we learned about the diversity, means variation कितनी ज़्यादा है क्लॉथ्स में, right? In our country, मैप के थ्रू हमने वेरिएशन देखा क्लोथ्स में, and there are some of the activities which you have to perform, and I hope so that every one of you will perform the activity and will find out the answer to those activity, right? So we are done with the lesson, and I hope that you are clear with each and every concept which is covered, and you have understood that unnecessarily we should not buy clothes, or we should not have a desire to buy more and more clothes. Because there are people outside who don't have food to eat, है ना? So we can stay with how many clothes we are having, okay? And we should not have much desire for that, because that will give us the greed for clothes, है ना? So
The clothes, they are our basic necessity. So we are done with the lesson, clothes are necessity, and I hope that you are clear with the lesson. Thank you everyone.